A very warm welcome to the class of biology. Today in this video we will discuss about the chapter number 9, respiration in organisms. But as usual what we used to see one short clip which is having moral values. So here also first of all we will see one clip. Which topics we are going to discuss? That is, first of all, respiration and breathing. Means, first of all, we will understand the main difference, or we can say the definition of this respiration and breathing, so that we can understand the basic difference between these two. Then, respiratory system. Respiratory system in animals, in humans, in plants. And then at the end we will discuss the types of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. Now let us start with the definition of these two terms, that is respiration and breathing. जनरली हम लोग समझते हैं कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट फैक्ट. फैक्ट क्या है कि रेस्पिरेशन भी अलग है और ब्रीदिंग भी अलग है. तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, that is known as breathing process. So here is the definition of breathing, that is process of intake of oxygen rich air and giving out carbon dioxide rich air is called breathing. एक बार ऑक्सीजन रिच एयर हमारे बॉडी में एंटर हो गई, ठीक है. ऑक्सीजन रिच एयर मतलब एयर हैविंग ऑक्सीजन इन एबंडेंस. Then that oxygen is carried by the blood and then it will reaches to the each and every cell of our body. Then सेल में ऑक्सीजन की एंट्री होगी. उसके बाद हमारे सेल में जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है, आपने डाइजेशन में पढ़ा है, that after the digestion that food is absorbed into the cell. Then वो food in presence of oxygen gives energy and that process is known as respiration. So that is why the respiration is defined as that the process of releasing energy. This process is known as respiration. और ये एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं कौन कौन सी चीज़ों में? सो फॉर ईच एंड एवरी लाइफ प्रोसेसेस, ईच एंड एवरी, फिर वो चलना है या फिर खाना है या बोलना है या सोचना है या फिर कोई भी एक्टिविटी करनी है जैसे कि डांसिंग, रीडिंग, थिंकिंग, कुछ भी करना है. ईच एंड एवरी लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज गिवन आउट बाय द प्रोसेस दैट इज respiration. Understood all? Now let us start with the first terminology, that is breathing. So as already we discussed that the process whereby air moves in and out of the body, that is what the breathing process.
air which is moving inside our body, that is oxygen rich air, while the air which is moving outside the body, that is carbon dioxide rich air. Breathing process involves two main processes, that is inspiration and expiration. इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन मतलब क्या कि आप जो हम सांस लेते हैं ना उसको इनहेलेशन बोलते हैं। सो इनहेलेशन कैन बी ऑल्सो said as inspiration, and expiration is also known as exhalation. Exhalation मतलब to give out the carbon dioxide into from the body, that is exhalation, सांस छोड़ना, तो that process is also known as expiration, ठीक है। तो remember these two words, इंस्पिरेशन का मतलब है इनहेलेशन एंड एक्सपीरेशन का मतलब है एक्सेलेशन। उसमें क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इनहेलेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप इज एयर इज इनहेल्ड थ्रू अवर नोज। जैसे ही आपने इनहेल किया इट विल मूव डाउन इनटू योर बॉडी। तो सबसे पहले वो जाएगा विंड पाइप में, फिर विंड पाइप से लंग्स में। अभी जैसे ही आपने एयर को इनहेल किया तो क्या होगा, तो ये जो आपको रिब केज दिख रही है, दैट रिब केज इज व्हाट, दीज आर दी बोन्स विच आर प्रोटेक्टिंग द लंग्स एंड हार्ट। ये बोन के साथ मसल्स भी अटैच्ड होते हैं, उसको बोला जाता है रिब मसल्स। तो जैसे आपने एयर को इनहेल किया द रिब मसल्स गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, और उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, तो वो रिब केज, वो बोन्स एक्सपांड होंगे। जैसे ही एक्सपांशन हुआ, एक्सपांड होना मतलब अपना डायमीटर बढ़ाना, जैसे ही वो एक्सपांड हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ नीचे जो आपको डोम शेप्ड दिख रहा है दैट इज नोन एज डायाफ्राम। डायाफ्राम भी एक मसल है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब क्या, तो वो डायाफ्राम नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, दैट मीन्स डायाफ्राम विल मूव्स डाउन। जैसे डायाफ्राम मूव हुआ और रिब केज एक्सपांड हुआ, तुरंत ही क्या होगा, तो उसके अंदर जो चेस्ट कैविटी है, कैविटी के अंदर जगह बढ़ जाएगी। उसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, लंग्स में प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड, प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से फटाफट से एयर अंदर की ओर आ जाती है, इट मीन्स एयर गेट्स रश इनटू द लंग्स। ये हुआ इनहेलेशन। फिर कंप्लीट हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बन गई। फिर उसमें क्या होगा, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर लंग्स में आ गए तो तुरंत ही क्या होगा, तो डायाफ्राम गेट्स रिलैक्स्ड। रिलैक्स होना मतलब अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मीन्स इट विल मूव अप। जैसे ही वो अप होगा, आप देख सकते हो डायग्राम में क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। जैसे ही अप होगा रिब केज मसल्स विल ऑल्सो रिलैक्स, वो रिलैक्स होगा तो इमीडिएटली रिब केज क्या होगा, क्या बन जाएगा, वो स्मॉल बन जाएगा, जैसे पहले था, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। सो चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी वजह से जो भी अंदर प्रेशर है एयर का वो बढ़ जाएगा। जैसे ही एयर प्रेशर अंदर की ओर बढ़ गया, डायरेक्टली एयर विल पुश्ड आउट फ्रॉम आवर नोज। सो दैट इज व्हाट दी एक्सेलेशन प्रोसेस और एक्सपीरेशन प्रोसेस। जैसे पुश्ड आउट मतलब सांस छोड़ना, तो तुरंत ही हम सांस छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, और वी कैन से इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। वन मोर थिंग कि अगर हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं तो चेस्ट कैविटी के लिए एक और वर्ड है, दैट इज थोरेसिक कैविटी। स्पेलिंग क्या होगा इसका, THORACIC, thoracic cavity. The chest cavity is also termed as thoracic cavity. So somewhere if you find this type of word thoracic cavity, then don't get confused, it is chest cavity only. Understood all? I hope this thing is clear. ये डिफरेंस के फॉर्म में ही दिया है, फिर भी हम एक बार इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन का डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। ये डिफरेंस ऐसे भी पूछा जा सकता है, दैट राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो दोनों केस में सेम ही रहेगा।
फर्स्ट इस इंस्पिरेशन क्या है, तो इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, वाइल एक्सपिरेशन इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस मतलब डायरेक्ट प्रोसेस है, एंड पैसिव प्रोसेस मतलब इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस इंस्पिरेशन। देन इंस्पिरेशन में क्या होता है, दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स अकर। इंटरकोस्टल मसल्स मतलब रिब केज मसल्स एंड डायाफ्राम। डायाफ्राम भी एक मसल है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। तो ये सारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। देन इन एक्सपीरेशन रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दैट मीन्स के मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स अकर। देन इन इंस्पिरेशन रिब केज इज मूव फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड्स, मतलब इट इज़ मूविंग आउट इन द आउटवर्ड साइड, इट गेट्स एक्सपांड, वो डायमीटर में बढ़ता है, बाहर की ओर निकलता है। दैट इज़ व्हाट द आउटवर्ड डायरेक्शन। देन इन एक्सपीरेशन रिब केज मूव्स डाउनवर्ड और इनवर्ड, मतलब अंदर की साइड मूव होगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। देन इन इंस्पिरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स फ्लैटेंड, मतलब नीचे जैसे मूव करेगा तो वो फ्लैट बन जाएगा। एक्चुअली डायफ्राम का शेप क्या है, डोम शेप्ड है, ठीक है। तो जैसे ही वो नीचे की तरफ मूव करता है वो फ्लैट बन जाता है। एंड इन केस ऑफ एक्सपीरेशन डायफ्राम रिलैक्सेस एंड बिकम्स ओरिजिनल डोम शेप्ड, मतलब वो इट इज़ मूविंग अप जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे जाएगा, तो अगेन इट विल गेन इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज डोम शेप्ड। देन इन इंस्पिरेशन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मैंने पहले भी बोला है, थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी। देन इन द केस ऑफ एक्सपिरेशन डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। इन केस ऑफ इंस्पिरेशन एयर प्रेशर इन लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही चेस्ट कैविटी एक्सपांड होगी तो उसके अंदर एयर प्रेशर कम होगा। जैसे ही एयर प्रेशर कम हुआ तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा और उसी की वजह से एयर बाहर से अंदर की तरफ रश करती है। इन द केस ऑफ एक्सपिरेशन एयर प्रेशर इन लंग इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी की वजह से फटाफट से एयर पुश्ड इटसेल्फ इनटू द एटमॉस्फेयर, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाना। दैट इज व्हाट द that is due to the difference in the air pressure between the internal side and external side. Then in case of inspiration intake of air into the lungs, मतलब air is getting inside into the lungs, while in case of expiration expulsion of air from the lungs, expulsion मतलब air gets removed from the lungs. So understood this difference? देखो ये डिफरेंस अगर ये याद नहीं रहता तो आगे की डायग्राम में जो मैंने डिफरेंस आपको एक्सप्लेन किया है वो भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। एनी वन यू कैन रिमेंबर, एंड इफ यू विल रिमेंबर देन एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द ब्रीदिंग प्रोसेस। नाउ लेट अस डिस्कस द अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज रेस्पिरेशन। In chapter 2, that is nutrition in animals, we discussed about the digestion in animals. In that chapter we discussed digestion in humans and digestion in ruminant. तब हमने डिस्कस किया था कि वॉट एवर फूड वी आर ईटिंग इट इज़ हैविंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एंड एट द एंड ऑफ डाइजेशन प्रोसेस these three macronutrients are converted into simpler substances which is directly absorbed into the blood and reaches to the cell for the assimilation purpose. यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो G है, that this G is what? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है तो हमने डिस्कस किया, स्टार्च है वो उसका सिंपल सब्सटेंस कौन सा है, ग्लूकोज। तो स्टार्च दैट इज कार्बोहाइड्रेट is digested into glucose, that is the simpler absorbable unit of starch. तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर एसिमिलेट होगा और फिर वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन होगा, मतलब उसका यूज़ होगा। ये ग्लूकोज जो सेल के अंदर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस ग्लूकोज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अगर सिंपल टर्म में बोले तो उसका कंबस्चन होगा, और एल्स उससे भी सिंपल टर्म यूज़ करें तो उसका बर्निंग होगा। बर्निंग मतलब आग लगाना नहीं, बट दिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड गिव आउट water and carbon dioxide. H2O means water and CO2 means carbon dioxide. Other than these two product, it also gives energy. यहाँ पे दिख रही है एनर्जी लिखी हुई,
ये एनर्जी भी इमिट मतलब प्रोड्यूस करता है। तो हमने बात की थी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, सो दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन प्रोसेस। फिर से मैं बोल रही हूँ कि ग्लूकोज, जी इज व्हाट, ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड विल गिव आउट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये एनर्जी लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज होगी, वाटर हमारी बॉडी में रहेगा, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन रीच टू दी लंग्स एंड फ्रॉम लंग इट विल बी एक्सेल्ड आउट। जो हमने ब्रीदिंग में डिस्कस किया था ना एक्सेलेशन, तो वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रेस्पिरेशन प्रोसेस। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल गिव वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अंडरस्टूड दिस प्रोसेस वेरी वेल। ये इक्वेशन के फॉर्म में आपको याद रखना है। अंडरस्टूड? Now let us understand the difference between these two important terminologies, that is breathing and respiration. This difference you have to learn without failure. The first is what in case of breathing. What is breathing? It is intake of fresh air, that is oxygen rich air, and removal of foul air, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। आप फ्रेश एयर और ऑक्सीजन रिच एयर भी लिख सकते हो, मतलब दोनों में से कोई एक वर्ड लिख सकते हो, एंड फॉर फोल एयर ऑल्सो। देन इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड में भी क्या, तो ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। देन ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, मतलब वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ बाहर से ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल की और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर रिलीज कर दी, इतना ही होता है ब्रीथिंग में। वाइल रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो क्यों बोला, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर होती है, सेल के अंदर होती है। वाइल केमिकल मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन होता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। देन ब्रीदिंग में क्या होता है कि ब्रीदिंग डजंट रिलीजेस एनर्जी एंड इट इज़ नॉट यूजिंग एनर्जी, मतलब वो एनर्जी का यूज़ भी नहीं, ब्रीदिंग प्रोसेस में एनर्जी का यूज़ भी नहीं होता है और ये एनर्जी रिलीज भी नहीं करती है। ठीक है, इट इज़ नाइदर रिलीजिंग एनर्जी नोर यूजिंग एनर्जी। वाइल इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वहाँ पे हमने एनर्जी बोला था ना, वो एनर्जी कौन से फॉर्म में रिलीज होती है, इट इज़ रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी आपको याद रहे तो ठीक है, याद नहीं रहता है देन डोंट रिमेंबर दिस टर्म एटीपी। सेम चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में है, तब आपको ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, तब आपको एटीपी के बारे में भी सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखना दैट एनर्जी इज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। अंडरस्टूड? देन ब्रीदिंग इज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, मतलब वो सेल के बाहर होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस सेल के बाहर होती है। वाइल रेस्पिरेशन इज इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। इंट्रा का मतलब क्या है, सेल के अंदर होना, तो ये सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है, इसलिए इसको इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस भी बोला जाता है और इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। क्यों सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोला गया, बिकॉज वो सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में कोई एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एंजाइम मतलब जो डाइजेशन में हमने पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव जूसेस, सो दिस टाइप ऑफ जूसेस यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है ब्रीदिंग में। वाइल इन केस ऑफ रेस्पिरेशन बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे जूसेस चाहिए, बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए जो कि ये रिएक्शन को फास्ट करेंगे। ठीक है, फास्ट करना मतलब एक्सेलरेट करना, स्पीडी बनाना ये रिएक्शन को। बहुत सारे एंजाइम्स है जो ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। देन ब्रीदिंग इज कन्फाइंड टू अ सर्टेन ऑर्गन। विच ऑर्गन? तो इनसाइड द लंग्स ओनली। लंग को छोड़ के कोई भी ऑर्गन में ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं होगा। वाइल रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है, सारे सेल्स में ब्रीदिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस डेफिनेटली होगा एंड एनर्जी रिलीज होगी। अंडरस्टूड दिस डिफरेंस? ठीक है, ये डिफरेंस अच्छे से आपको याद रखना है, इसमें से रखो या फिर आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है उसमें से भी आप याद रख सकते हो, मगर यू हैव टू रिमेंबर इट प्रॉपरली।
Now we discuss human respiratory system, or we can say respiratory system in humans. So here is the diagram is of human respiratory system. So here first of all we will discuss the main organs of human respiratory system. तो human respiratory system starts with the nose. नोज़ के बाद आएगा नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी मतलब क्या है कि नोज़ के अंदर की कैविटी. दिस नेज़ल कैविटी, नोज़ एंड ऑल दीज आर देयर इन द थ्रोट. This nasal cavity ends with the pharynx. Then after pharynx, larynx will come. Larynx क्या है? Voice box. Larynx के top part में, larynx is the anterior part of the pharynx. जहाँ pharynx खत्म होता है वहीं से larynx start होता है, मगर वो बाहर की साइड situated है. larynx के ऊपर एक slit होती है. स्लिट मतलब वो कैमरे में होती है ना स्लिट, जहाँ से हम पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, ऐसे ही स्लिट इधर भी होती है. वो स्लिट को बोला जाता है ग्लोटिस, और वो ग्लोटिस कवर्ड रहता है एपीग्लोटिस के साथ. देन लैरिंग्स जहाँ ख़त्म होगा वहीं से विंड पाइप स्टार्ट होगी. विंड पाइप इज नोन एज ट्रेकिया. ट्रेकिया इज सराउंडेड विद द कार्टिलेजिनस रिंग्स, मतलब ट्रेकिया के ऊपर ऐसे रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको. देन ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया डिवाइड्स टू फॉर्म ब्रोंकाई. ब्रोंकाई इज द प्लूरल वर्ड. सिंगुलर वर्ड क्या है उसका? ब्रोंकस. ईच ब्रोंकस लीड्स इनटू द लंग्स. फिर लंग्स के अंदर जाके वो ब्रोंकस सब डिवाइड होगा और बनेगा ब्रोंक्यूल्स. And bronchioles, each smallest bronchiole terminates with the alveoli. And सबसे नीचे diaphragm, जो कि dome shaped का है. Diaphragm is also a muscle that already we discussed when we discussed breathing part. So these are the major organs of human respiratory system. Nose, then nose के बाद आता है pharynx. फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स. लैरिंग्स के बाद है विंड पाइप जिसको ट्रेकिया बोलते हैं. देन ब्रोंकस एंड देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन अल्वियोली. एंड द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लंग्स, क्योंकि लंग्स के अंदर ही क्या पाया जाता है? ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोली. दिस लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड आवर चेस्ट, और चेस्ट को क्या बोलते हैं? थोरेक्स बोलते हैं. मैंने आपको बोला था ब्रीदिंग में कि थोरेसिक कैविटी दैट इज चेस्ट कैविटी, तो चेस्ट को ऐसे ही थोरेक्स बोला जाता है. दीज लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. दिस रिब ऑल्सो सपोर्ट द लंग्स एंड हार्ट ऑल्सो एंड हेल्प टू पंप एयर इन एंड आउट व्हेन वी ब्रीथ. जैसे कि मैंने बोला कि डायाफ्राम सबसे नीचे है, तो जस्ट बीनीथ द लंग्स डोम शेप्ड मसल इज दैट, दैट इज डायाफ्राम. जब भी डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑक्सीजन रिच एयर हम इनहेल करेंगे, और जब भी उसका रिलैक्सेशन होगा तब वी विल एक्सेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. ठीक है, तो ये सब कुछ आएगा किसमें? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में. एंड दीज आर दी मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. वन मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ डायफ्राम इज देयर कि वो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से डिफ्रेंशिएट करता है. मतलब कि डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट चेस्ट कैविटी और उसके नीचे वाला पार्ट एब्डोमिनल कैविटी. अंडरस्टूड द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ लेट अस सी द लिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. Okay, now we are going to discuss about the each and every organs of human respiratory system. The first we will start with the first organ of human respiratory system, that is nose. Nose, we know that nose is having two openings and that opening are known as nostrils. So humans have two nostrils and nostril के अंदर आप देखोगे तो एक कैविटी आपको दिखेगी, जगह दिखेगी, स्पेस दिखेगी. दैट कैविटी इज नोन एज नेजल कैविटी. अंडरस्टूड? नोज इज हैविंग नेजल कैविटी. दैट नेजल कैविटी possess फाइन हेयर एंड दैट नेजल कैविटी ऑल्सो सिक्रेट्स म्यूकस. सिक्रेट करना मतलब रिलीज करना, प्रोड्यूस करना. वो म्यूकस को प्रोड्यूस करता है. दिस म्यूकस इज वेरी स्टिकी इन नेचर, मतलब बहुत चिपचिपा होता है.
What is the function of this fine hair and mucus? So here combinedly we are going to discuss the function of fine hair and mucus, that they filters the air. How? मतलब filter करना मतलब purify करना. As you are familiar with this term, filter करना, that means purify करना. कैसे purify करता है? So they prevent the entry of foreign particles like microorganisms and dust particles into our body. But how? So this fine hair will trap the dust particles. ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं और आगे जाने ही नहीं देते हैं. फिर भी अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर फॉरेन पार्टिकल्स बच गया ट्रैपिंग से, देन म्यूकस इज देयर. दिस म्यूकस बीइंग वेरी स्टिकी इन नेचर, बहुत ही चिपचिपा होता है जैसे कि मैंने बोला. तो क्या होता है कि whenever these foreign particles are there along with the air which we have inhaled, that dust particle or foreign particles get stick with the mucus. वो mucus के साथ चिपक जाते हैं. And meanwhile it prevents the entry of this dust particle and foreign particles into our respiratory system. Understood the function? फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि नोज़ की कैविटी जो है उसको बोला जाता है नेज़ल कैविटी. This nasal cavity possesses fine hair and it secretes mucus which is very sticky in nature. उनका फंक्शन क्या है? That they filters the air. How? So here whenever we are inhaling the air, in that air dust particles are also we are inhaling, and foreign substances like microorganism we are also inhaling. But fine hair and mucus which are there in the nasal cavity will prevent the entry of this particles into our respiratory system. कैसे करते हैं? तो फाइन हेयर उसको ट्रैप कर लेता है एंड म्यूकस क्या करता है? तो म्यूकस विल स्टिक दोज फॉरेन पार्टिकल्स into it and then it won't allow them to go ahead into the respiratory system. I hope this idea is clear about the fine hair and mucus, role of fine hair and mucus. Now next organ is what? Pharynx. Pharynx, remember its pronunciation properly, it is pharynx. It is the second organ of human respiratory system. जहाँ पे नेज़ल कैविटी एंड होती है वहाँ पे फेरिंग्स स्टार्ट होता है. वंस द नेज़ल कैविटी एंड्स फेरिंग्स विल स्टार्ट. तो वो एरिया को फेरिंग्स बोला जाता है. आगे हमने ऑलरेडी जो मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन की है उसमें मैंने आपको फेरिंग्स की लोकेशन दिखाई थी. सो दैट इज़ व्हाट द फेरिंग्स. द नेज़ल कैविटी लीड्स इनटू फेरिंग्स, मतलब वो नेज़ल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में. दिस फेरिंग्स इज़ अ कॉमन ट्यूब दैट कंडक्ट्स बोथ फूड एज वेल एज एयर. मतलब कि वो एक एरिया ऐसा है फेरिंग्स का जहाँ से फूड भी पास होता है और एयर भी पास होती है. ठीक है, दिस इज़ द कॉमन एरिया फॉर बोथ एंट्री ऑफ फूड एंड कंडक्शन ऑफ एयर. दोनों का कंडक्शन उसी में से होता है. और फिर बाद में फेरिंग्स में से दो मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि एक रास्ता जा रहा है और वहाँ से दो रास्ते निकलेंगे. एक रास्ता फूड पाइप की ओर जाएगा और एक रास्ता विंड पाइप की ओर जाएगा. सेम वे ये कॉमन रास्ता है फेरिंग्स. और फिर फेरिंग्स के बाद दो ट्यूब्स फॉर्म होती है. एक ट्यूब जाती है विंड पाइप के ओर और एक ट्यूब जाती है फूड पाइप की ओर. फूड पाइप ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द सेकंड चैप्टर. क्या नाम है उसका फूड पाइप का? यस, इट इज़ ईसोफेगस. एंड विंड पाइप का जो कि हमने अभी भी डिस्कस किया वो क्या है? ट्रेकिया. ठीक है, ऐसे दो अलग अलग रास्ते बन जाएंगे. वन इज़ फॉर कंडक्शन ऑफ एयर एंड वन इज़ फॉर कंडक्शन ऑफ फूड. अंडरस्टूड दिस फेरिंग्स? देन आफ्टरवर्ड लैरिंग्स इज कम. Larynx organ will come. This larynx is not exactly it is not an organ of human respiratory system, but वो ट्रेकिया के ऊपर सिचुएटेड है. ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है रेस्पिरेशन में, मगर इसका ये है क्या? तो इट इज़ सिचुएटेड जस्ट अबव द ट्रेकिया एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स मतलब उसका काम क्या है? साउंड प्रोडक्शन का. अगर आप अपनी नेक को टच करोगे तो जो उपसा हुआ एरिया जो दिखता है ना आपको, दैट इज़ द वॉइस बॉक्स, दैट इज़ लैरिंग्स. वॉइस बॉक्स उसका कॉमन नेम है, लैरिंग्स उसका साइंटिफिक नेम है. तो हियर लैरिंग्स इज़ अ बॉक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जस्ट अबव द ट्रेकिया. जब भी एयर ट्रेकिया में पास होती है तो पहले वो पास होती है लैरिंग्स में से एंड देन इट विल पास टू द ट्रेकिया.
तो जब भी एयर पास होगी लैरिंग्स में से तब वो साउंड प्रोडक्शन लैरिंग्स में होता है। हाउ दिस साउंड प्रोडक्शन इज डन दैट यू विल लर्न इन 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस वो नहीं करेंगे, बट हमें सिर्फ इतना डिस्कस करना है दैट लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस द साउंड व्हेन एयर पासिस through when air is moving towards the trachea. At that time it is passing from the larynx first of all and then it will move to the trachea. ठीक है, तो इतना है larynx के बारे में। I hope this is clear. After larynx trachea will come. Trachea क्या है? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि it is a windpipe that conducts air from pharynx to the lungs. ठीक है, तो it is the main airway to the lungs. उसके बाजू में आप देख सकते हो डायग्राम जो मैंने रखा है दैट इज़ ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, इट इज़ अ ट्यूब दैट कंडक्ट्स द एयर टू द लंग्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। तो विंड पाइप उसका जनरल नाम है और साइंटिफिक नाम है उसका ट्रेकिया। दिस ट्रेकिया इज हेल्ड इन प्लेस बाय सी शेप्ड रिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? तो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ के जो ट्रेकिया को अपनी पोजिशन पे होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट द सी शेप्ड रिंग। आप देख सकते हो डायग्राम में इट इज़ क्लियरली सीन दैट दिस ट्रेकिया इज हेल्ड ऑन इट्स पोजिशन बाय द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स और रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। दिस ट्रेकिया सब डिवाइड्स टू फॉर्म ब्रोंकाई। देखो आप नीचे जो उसके सब डिवीज़न दिख रहे हैं उसको ब्रोंकाई बोला जाता है। ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है। अगर एक सिंगुलर वर्ड आपको यूज़ करना है तो सिंगुलर वर्ड है उसका ब्रोंकस, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ईच ब्रोंकस विल एंटर इनटू द लंग्स फॉर इट्स फंक्शन। रिमेंबर, ईच ब्रोंकस विल एंटर इनटू द लंग्स फॉर इट्स फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ट्रेकिया। इट इज़ द मेन एयरवे टू द लंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। इट इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय सी शेप्ड रिंग मेड ऑफ कार्टिलेज एंड ट्रेकिया सब डिवाइड्स टू फॉर्म bronchi. You can also refer the diagram which is given, then you will understand more properly. Then comes glottis and epiglottis. What is glottis and what is epiglottis? तो पहले हम glottis का देखते हैं। तो here you can see this diagram, जहाँ पे 1 2 मैंने लिखा है ना, वो उसमें जो 2 करके जो एरो दिया है it is glottis, और ऊपर जो 1 करके एरो दिया हुआ है that is epiglottis. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस इज अपर नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द लैरिंग्स दैट ओपन्स इनटू ट्रेकिया। तो जो हमने लैरिंग्स डिस्कस किया, तो लैरिंग्स के ऊपर का नैरो पार्ट जो सबसे नैरो होता है वो पार्ट को बोला जाता है ग्लॉटिस, जो कि एक स्लीट है और वी कैन से ओपनिंग है। ठीक है, इट इज़ अ नैरोएस्ट ओपनिंग, और यही ओपनिंग में से एयर ट्रेकिया में जाएगी। ठीक है, एयर पासिस टू ट्रेकिया थ्रू दिस ग्लोटिस, जो कि सिचुएटेड कहाँ पे है? लैरिंग्स के ऊपर। अंडरस्टूड माय वर्ड्स कि इट इज़ द अपर नैरोएस्ट पार्ट, इट मतलब ग्लोटिस। ग्लोटिस इज द अपर नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द लैरिंग्स दैट ओपन्स इनटू ट्रेकिया एंड इट इज़ लाइक अ स्लिट और ओपनिंग। आप यहाँ पे देखो दूसरी डायग्राम में कि नीचे जो सी शेप्ड दिख रहा है ना, वो ट्रेकिया है, और उसके ऊपर एक छोटा सा ओपनिंग दिख रहा है, दैट ओपनिंग इज नॉन एज ग्लोटिस, जहाँ से एयर ट्रेकिया में जाएगा। नाउ दिस एज ऑलरेडी वी डिस्कस के फेरिंग्स है, फेरिंग्स जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं से तो लैरिंग्स स्टार्ट होता है। इट मीन्स कि फेरिंग्स एंड लैरिंग्स के बीच में ये ओपनिंग होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि फेरिंग्स में फूड भी पास होता है और एयर भी पास होती है, तो वी मस्ट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। ठीक है, अगर फूड विंड पाइप में चला गया तो इट विल क्रिएट ह्यूज प्रॉब्लम। तो हम वो प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? तो दैट प्रोटेक्शन इज गिवन थ्रू द एपिग्लोटिस। ठीक है, तो हियर व्हाट इज एपिग्लोटिस? तो एपिग्लोटिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। फ्लैप का मतलब क्या है? इट इज़ एक्टिंग लाइक अ शटर। जो हम हमारी शॉप वगैरह होती है तो उसके ऊपर शटर होता है, हम रखते हैं शटर बंद करने के लिए उसको। तो ये एपिग्लोटिस भी वो शटर के जैसा होता है, जो कि अप एंड डाउन हो सकता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं और उसको निगलते हैं, व्हेन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू द ईसोफेगस, एट दैट टाइम क्या होता है? दैट ग्लोटिस, ये जो ओपनिंग होती है
दैट ओपनिंग इज बीइंग कवर्ड बाय दिस एपिग्लोटिस, मतलब कि ये ओपनिंग के ऊपर ये शटर लग जाता है, शटर बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से फूड जो है वो सीधा ईसोफेगस में जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा. सो दिस इज व्हाट द प्रोटेक्शन गिवन बाय द नेचर. दिस एपिग्लोटिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप ऑन द टॉप ऑफ द ग्लोटिस. तो यहाँ पे जो 1 करके जो इंडिकेट किया है वो है एपिग्लोटिस, कि जब भी आप फूड निगलते हो और फूड जाता है, ट्रांसफ़र होता है ईसोफेगस में, तब ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो विंड पाइप में न जाए. दिस एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द फूड एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम एंट्रिंग इनटू द ट्रेकिया. While swallowing food, epiglottis cover glottis, so food can't get into the windpipe. Understood these two words, glottis and epiglottis. Glottis एक कॉमन, एक स्मॉल सी ओपनिंग है जहाँ से एयर पास होके ट्रेकिया में जाएगी, ठीक है. बट वो ओपनिंग है, उसको पता नहीं चलता है, ठीक है, एयर है या फूड है, तो फूड भी तो जा सकता है ट्रेकिया में. तो टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रेकिया, one another cartilaginous flap is there, that is known as epiglottis, which used to cover the glottis while swallowing the food. Understood all glottis and epiglottis? Very good. After that the next is what? Bronchi. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ट्रेकिया gets subdivided into 2 parts and that parts are known as bronchi. So here the trachea divides into 2 main branches, the right and left bronchus. Bronchus उसका singular word है और bronchi it is plural word. Each bronchus will enter into the lungs. Each bronchus leads into the lung. Inside the lung, each bronchus divides to form small tube and that tubes are known as bronchioles. Understood it very well. Bronchi क्या है? तो trachea gets divided into 2 main branches, that is bronchi. Bronchi में एक right bronchus and एक left bronchus. Right bronchus will lead to the right lung and left bronchus will lead to the left lung. Understood? Then each inside the lung, each bronchus again divides themselves to form smaller tubes and each small tubes are known as bronchioles. Understood? Clear this term bronchi and bronchioles. So here you can see, आप देखो यहाँ पे ट्रेकिया के 2 डिवीज़न, 2 lungs, ठीक है. Each bronchus gets enter into the lungs and they form smaller branches, those are bronchioles. Understood this? ब्रोंकियोल, ये डायग्राम को अच्छे से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेकिया कैसे डिवाइड होती है और ब्रोंकाई कैसे डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स बनाता है. अंडरस्टूड? Then what is bronchioles and what is the function of that? Each smallest bronchioles leads to alveoli. देखो bronchioles क्या है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, that each bronchus again divides themselves to form smaller tubes and that is bronchioles. एक ब्रोंक्यूल नहीं होता है, बहुत सारी स्मॉल ट्यूब्स होती है और जो सबसे छोटी मतलब ईच स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स, सबसे छोटा वाला जो ब्रोंक्यूल होता है दैट लीड्स और दैट टर्मिनेट्स विद द अल्वियोली. ठीक है, अल्वियोली दैट इज प्लूरल वर्ड, अल्वियोलस दैट इज सिंगुलर वर्ड. तो एक सबसे छोटा सा जो ब्रोंक्यूल्स होता है उसके लास्ट पार्ट में, लास्ट एंड में अल्वियोलस होता है जहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज आपको मिलेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज अल्वियोली. अल्वियोली क्या है? तो इट्स अ प्लूरल वर्ड एंड सिंगुलर वर्ड इज अल्वियोलस. ईच अल्वियोलस इज सराउंडेड बाय अ कैपिलरी नेटवर्क. कौन सी कैपिलरी? ब्लड कैपिलरी. ठीक है. ईच अल्वियोलस इज सराउंडेड और वी कैन से रैप्ड बाय अ ब्लड, बाय मेनी ब्लड कैपिलरीज. और इसी वजह से यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क लिखा है. नेटवर्क में एक चीज़ नहीं होती है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कैपिलरीज आर देयर टू फॉर्म नेटवर्क.
तो ऐसे ही बहुत सारी कैपिलरी मिलके एक नेटवर्क बनाती है और वो नेटवर्क होता है अल्वियोलस के पास। व्हेन ऑक्सीजन रिच एयर कम्स टू द अल्वियोलाई एट दैट टाइम डिफ्यूजन अकर्स। डिफ्यूजन ऑफ व्हाट? तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गेट्स अकरिंग। कहाँ से? तो एयर में से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होगा और वी कैन से मूव होगा ब्लड में विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस। डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या है? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन विल मूव टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड मीनवाइल इट गेट्स मूव्ड इनसाइड द ब्लड। सो हियर गैसियस एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होके अल्वियोलाई में आ जाएगा। ठीक है, तो हियर द एक्सचेंज इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एंड दैट इज़ वाई दिस अल्वियोली इज द मेन साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। दैट इज़ कौन से गैसेस का एक्सचेंज होता है इधर? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड? आई एम वंस अगेन रिपीटिंग कि हियर द अल्वियोली that is the plural word and singular word is alveolus. Each alveolus is surrounded by a capillary network. Here the gaseous exchange is taking place. Gaseous exchange of which gases? So oxygen and carbon dioxide. Oxygen is replaced by the carbon dioxide and that is why it is serving as a main site for the gaseous exchange. Understood? Let us have a look at the diagram of alveolus. हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ अल्वियोलस, जो कि हमने आगे यही डायग्राम डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको लंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स दिखाए थे। अभी ईच स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल टर्मिनेट्स विद द अल्वियोलाई एंड हियर इज़ द डायग्राम ऑफ अल्वियोलस। सिंगल अल्वियोलस का डायग्राम दिया है। ऐसे ही देखो, आप देखो यहाँ पे ब्लू और रेड कलर की जो आपको कैपिलरीज दिख रही है ना, लाइक दिस वे इट फॉर्म्स नेटवर्क। इट फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और ऐसे ही डिफ्यूज़न ये यहाँ पे बीच में जो एयर सैक्स करके दिया है, ठीक है, एयर सैक्स क्या है? तो कि एम्प्टी जगह है जहाँ पे एयर आएगी और वहाँ से ही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। ठीक है, कहाँ पे? ब्लड से। ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकल के ये सैक में जाएगा एंड फ्रॉम दिस सैक इट विल बी एक्सेल आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। आई होप दिस इज क्लियर। अल्वियोली इज क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस द lungs, which is the main organ of respiratory system. Why it is main? Because the gaseous exchange which is done inside the alveoli is present into the lungs. ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये अल्वियोली का घर है। ठीक है, और उसी की वजह से इसको मेन ऑर्गन बोला जाता है। वाइल अल्वियोलाई इज द मेन साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज एंड lungs are the main organs of the gaseous exchange. It is the main organ of respiratory system where gaseous exchange is done. A pair of lungs are there, that is left lung and right lung. Now see, जो हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो जनरली ब्लड इज देयर कैरिड बाय द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में कैरी होता है। इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड वेसल इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद वाले चैप्टर में हम ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट प्राइमरी आइडिया आई विल गिव हियर ओनली कि ब्लड वेसल अगर हम देखें तो दो तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं मेन, दैट इज आर्टरी एंड वेन। आर्टरी जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड हैविंग ऑक्सीजन, एंड वेन जनरली क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड। बट जो भी आर्टरी और वेन लंग्स में एंटर होती है उसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, जिसका फंक्शन एग्जैक्टली रिवर्स होता है नॉर्मल आर्टरी एंड वेन से। कैसे होता है? लेट अस सी। Arteries which enters into the lungs are known as pulmonary artery that carries deoxygenated blood having carbon dioxide। हमने क्या डिस्कस किया था कि रेगुलर आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब ब्लड हैविंग ऑक्सीजन। बट
ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब एग्जैक्टली रिवर्स। जो भी मेन आर्टरी का फंक्शन होता है उससे रिवर्स फंक्शन पल्मोनरी आर्टरी का है कि जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, मतलब ब्लड हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड। और कहाँ से कहाँ कैरी करती है, तो फ्रॉम हार्ट टू दी लंग्स। इसकी लोकेशन याद रखना पल्मोनरी आर्टरी की, कि वो ब्लड कैरी तो करेगी मगर हार्ट में से वो कैरी करेगी और वापस लाएगी लंग्स में। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज वेन। वेन दैट एंटर्स इनटू द लंग्स आर नोन एज पल्मोनरी वेन। जनरली वेन कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये जो पल्मोनरी वेन है इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज ब्लड हैविंग ऑक्सीजन। और ये कहाँ से कहाँ तक कैरी करेगी, तो इट कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड देन इट विल लोड दैट ऑक्सीजन वाला ब्लड इनटू द हार्ट, मतलब फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन, पल्मोनरी वेन। तो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल, pulmonary artery and pulmonary vein. The same concept we will again discuss in the next chapter. हम नेक्स्ट चैप्टर में ये सेम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मगर बेसिक आइडिया याद रख लो कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड पल्मोनरी वेन विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। See, here pulmonary artery carries deoxygenated blood from heart into the lungs and then pulmonary vein carries oxygenated blood from lungs to heart. ठीक है, समझ में आया इतना कि लंग्स मेन ऑर्गन है, दो लंग्स है, राइट एंड लेफ्ट लंग। लंग में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, कहाँ पर होता है, अल्वियोली में होता है, ठीक है। अल्वियोली एक्सचेंज करेगी, ऑक्सीजन को ब्लड में एंटर करेगी एंड देन वो ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट तक कौन पहुंचाएगा, दैट इज़ पल्मोनरी वेन, ठीक है। फिर पूरे बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो हार्ट में आता है और वो हार्ट से लंग्स में कौन पहुंचाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज़ व्हाट अबाउट द लंग्स। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो यही चीज़ को 4-5 बार सुनना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द लास्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ डायफ्राम। डायफ्राम इज़ अ ब्रॉड thin muscular membrane. It is a dome shaped membrane. Remember, it is a dome shaped membrane which is present beneath the lungs. लंग के नीचे होता है। अपने डायग्राम डिस्कस की थी तब मैंने आपको दिखाया था कि डायफ्राम क्या है, कहाँ है। इट सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को क्या बोला जा सकता है, थोरेसिक कैविटी। हमने डिस्कस किया था कि चेस्ट को बोला जाता है थोरेक्स एंड चेस्ट कैविटी को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग। फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि डायफ्राम के ऊपर वाला जो पोर्शन है जहाँ पे लंग्स, ट्रेकिया सब कुछ है उसको बोला जाता है चेस्ट कैविटी, और डायफ्राम के नीचे वाले एरिया को बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। And that is why it is said that कि diaphragm separates the chest cavity from the abdominal cavity. Now the breathing process which we discussed, in that one we already discussed the role of diaphragm. Once again we are repeating that during the inhalation the diaphragm contracts. Contracts होना मतलब it will move downward side, नीचे की ओर move होगा, and reduces the pressure inside the lungs. लंग के अंदर का प्रेशर क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा। ड्यू टू दैट इट क्रिएट्स मोर स्पेस इनसाइड द लंग्स फॉर एयर टू एंटर। दिस इज व्हाट द सिचुएशन which is done at the time of inhalation process. Now during the exhalation process what happens, the diaphragm returns to its रेस्टिंग पोजिशन। रेस्टिंग पोजिशन मतलब उसकी ओरिजिनल पोजिशन पे वापस आ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है दैट इट इंक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड द लंग्स
प्रेशर इंक्रीज होना मतलब स्पेस कम होना, जिसकी वजह से एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एंड देयर बाय इट डिक्रीजेज मतलब रिड्यूसेस द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी एंड फोर्सेस द एयर। कौन सी एयर? कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को फोर्स करता है, जिसकी वजह से इट विल मूव आउट ऑफ द लंग्स। इट हैपन्स ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन प्रोसेस। तो अभी समझ में आया डायफ्राम का रोल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल डायफ्राम प्ले करता है कि उसी के रिलैक्सेशन की और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है और उसी डिफरेंस की वजह से O2 वाली एयर अंदर आती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर जाती है। ठीक है, अंडरस्टूड। दिस इज व्हाट द डायफ्राम। इट इज़ अ डोम शेप्ड मसल विच इज़ प्रेजेंट बीनीथ द लंग्स that separates chest cavity from the abdominal cavity. I hope this is clear. With this we discussed all the organs of human respiratory system starting from nose to the diaphragm. Please watch this video 2 or 3 times, particularly ये क्लिप को 3-4 बार रिपीट करना देखने में, तो फिर आपको अच्छे से उसके ईच एंड एवरी ऑर्गन के फंक्शंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे और फिर आपको क्लियर होगा द पैसेज ऑफ एयर। अंडरस्टूड ऑल? नाउ वी विल सी द पैसेज ऑफ एयर। पैसेज ऑफ एयर मतलब कि हाउ एयर मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द मेन साइड ऑफ द गैसियस एक्सचेंज, विच इज़ द मेन साइड, दैट इज़ अल्वियोली। तो बाहर एटमॉस्फेयर से अल्वियोली तक कैसे पहुंचती है, दैट वी विल सी। सो हियर इज़ द पैसेज ऑफ एयर। तो आप देख सकते हो कि हियर वन बॉय इज़ देयर, तो ही इज़ टेकिंग इन एयर, विच एयर? ऑक्सीजन रिच एयर। सो दैट इज़ व्हाट ब्रीदिंग इन। देन दैट ऑक्सीजन रिच एयर ट्रैवल्स डाउन टू, पहले तो आपको समझना होगा कि वो एंटर कहाँ से होती है, वो नोज से एंटर होती है। सो दैट एंटर्स वाया नोज और माउथ। कभी कभी हम नाक मतलब अगर सर्दी वगैरह हो गया है तो नाक बंद हो जाती है, तो एट दैट टाइम वी यूज टू ब्रीथ थ्रू दी माउथ। तो आइदर इट एंटर्स थ्रू नोज और इट एंटर्स थ्रू माउथ एंड देन इट ट्रैवल्स डाउन टू फेरिंग्स एंड देन लैरिंग्स। ठीक है, नेजल कैविटी एंड्स विद द फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स एक कॉमन एरिया है जो कि एयर पैसेज एंड फूड पैसेज के लिए कॉमन होगा। ठीक है, उसके बाद सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। फूड विल ट्रैवल्स डाउन टू फूड पाइप एंड दिस एयर विल ट्रैवल्स डाउन टू लैरिंग्स एंड देन विंड पाइप। ये आपको याद रखना है। देन आफ्टर फेरिंग्स एंड लैरिंग्स प्राइमरी फिल्ट्रेशन विल बी डन एंड देन इट विल एंटर्स इनटू द ट्रेकिया। प्राइमरी फिल्ट्रेशन मतलब कि एयर है तो वो विंड पाइप में जाएगी। ठीक है, सो दैट विंड पाइप इज़ व्हाट? ट्रेकिया। देन आफ्टर इट एंटर्स इनटू द ट्रेकिया, देन इट विल मूव डाउन टू द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। हमने डिस्कस किया था कि ट्रेकिया विल डिवाइड इनटू 2 एंड दैट डिवीज़न इज टर्म्ड एज ब्रोंकाई। ईच मतलब सिंगुलर वर्ड क्या है ब्रोंकाई के लिए? ब्रोंकस, वो आपको याद रखना है। देन फ्रॉम ब्रोंकाई इट विल पासिस थ्रू दी ब्रोंक्यूल्स। These bronchioles are there into the lungs, and after the bronchioles, each smallest bronchioles terminates with the alveoli, ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो दैट फाइनली एयर एंटर्स इनटू द alveoli. दिस alveoli इज व्हाट? तो वो फ्लावर शेप की होती है, मतलब शेप उसका फ्लावर जैसा आपको दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मूव करेगा। ठीक है, तो दिस alveoli, इन दिस alveoli एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर विल बी डन। नाउ एब्जॉर्प्शन होगा, मगर कैसे होगा? तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड कैपिलरीज। अभी ये डिफ्यूजन क्या है? लेट अस सी दिस। सो हियर इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। देखो यहाँ पे बहुत सारे रेड कलर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेड मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज़्यादा है तो उसको बोला जाता है हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि अमाउंट ज़्यादा होना, और सामने आपको दिख रहा है तो 3 मॉलिक्यूल्स ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो कंपेरेटिवली वहाँ 3 मॉलिक्यूल्स कम हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, मतलब कि
एरिया विच इज़ हैविंग लेस अमाउंट ऑफ दिस रेड मॉलिक्यूल्स। तो अब हम यहाँ ये मतलब इमेजिन करेंगे कि ये रेड मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, ठीक है, और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है भी, वो भी ऑक्सीजन के। तो आप देख सकते हो कि राइट साइड पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम हैं। तो फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल मूव। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं दैट ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू द लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूज़न। अंडरस्टूड? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग के दिस राइट साइड एरिया इज हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन and this left side area is having low concentration of oxygen. So always this air molecule, फिर वो ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, these air molecules will move from high concentrated area to the low concentrated area. और ऐसी मूवमेंट से क्या होगा, बैलेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वे विद द हेल्प ऑफ सेम प्रोसेस दैट इज डिफ्यूज़न, ऑक्सीजन पहले तो एयर में ज़्यादा था, ठीक है, तो एयर में से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मूव हो गए ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज में क्या है, ब्लड में ब्लड, ठीक है, तो सीधा वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सो लाइक दिस वे ऑक्सीजन विल एंटर इनटू द ब्लड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दूँ डिफ्यूज़न का। तो जनरली हम एयर फ्रेशनर तो हम लोग यूज़ करते ही हैं। तो आप एयर फ्रेशनर क्या सारे कोनों में स्प्रे करने जाते हो अपने कमरे में? नहीं, फ्रॉम एनी ऑफ द वन साइड यू विल स्प्रे, मगर थोड़ी देर के बाद आपका पूरा कमरा फ्रेग्रेंट हो जाएगा, मतलब स्मेल पूरे रूम में से आएगी। तो वो कैसे हुआ, आपने तो एक ही एरिया में स्प्रे किया था। तो जब भी आपने स्प्रे किया तब वो पर्टिकुलर एरिया में मैक्सिमम फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, मगर मीनवाइल वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया के टूवर्ड्स मूव किए, ठीक है। तो ऐसे पूरे रूम में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस और पूरे रूम में फ्रेग्रेंस छा गई। तो ये भी एक डिफ्यूज़न का ही एग्जाम्पल है एंड दिस इज़ व्हाट द डिफ्यूज़न प्रोसेस। आई होप दिस डिफ्यूज़न प्रोसेस इज अंडरस्टूड टू यू। अंडरस्टूड डिफ्यूज़न प्रोसेस? तो वंस अगेन मैं बोल रही हूँ कि एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन मूव करेगा, बट दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस, ठीक है। दिस डिफ्यूज़न प्रोसेस इज मेन प्रोसेस थ्रू विच दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम एयर टू द ब्लड। अंडरस्टूड? So let us discuss once again, let us summarize this passage of air again. So here is the summary of air passage, or we can say the path of air into the lungs, that is summarized as के पहले तो through the nostril air will enter into the nose, then that is what known as nasal cavity. From nasal cavity it will move to trachea. देखो हम ये summary देख रहे हैं, तो यहाँ पे बीच के मतलब मेन ऑर्गन्स ही हमने डिस्कस किए हैं अभी। So from nasal cavity that oxygen rich air will move to the trachea, then from trachea it will move to the bronchus. ब्रोंकाई का सिंगुलर ब्रोंकस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्रोंकस वर्ड यूज़ किया है। एंड देन इट विल मूव टू दी ब्रोंक्यूल एंड देन फ्रॉम ब्रोंक्यूल इट विल मूव टू दी अल्वियोलस. अल्वियोलस इज द सिंगुलर वर्ड ऑफ अल्वियोलाई. अल्वियोलाई इज द प्लूरल वर्ड एंड अल्वियोलस इज द सिंगुलर वर्ड. अंडरस्टूड? लाइक दिस वे एयर विल मूव into the lungs and then finally to the alveolus for the gaseous exchange. Once exchange is done, फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ब्लड में से अल्वियोली में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेम डिफ्यूज़न प्रोसेस, ठीक है. तब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है, वाइल जो कैविटी है अल्वियोली है उसमें कम है. तो फ्रॉम ब्लड टू अल्वियोली कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव और ऐसे अल्वियोली में आएगा. फिर फ्रॉम अल्वियोली ब्रोंक्यूल में जाएगा, देन फ्रॉम ब्रोंक्यूल ब्रोंकस, देन फ्रॉम ब्रोंकस ट्रेकिया एंड फ्रॉम ट्रेकिया नेजल कैविटी एंड फाइनली इट विल बी एक्सेल आउट इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है. तो इससे पूरी रिवर्स प्रोसीजर होती है
एक्सेलेशन में, और इनहेलेशन में ये प्रोसेस है, और एक्सेलेशन में इससे रिवर्स, दैट इज फ्रॉम अल्वियोलस टू नेजल कैविटी. अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट द पैसेज ऑफ एयर. आई होप इट इज क्लियर. Now let us see one of the activity that demonstrate how the diaphragm works during the process of breathing. Already we discussed the role of diaphragm when we discussed breathing process. I hope you remember that point कि कैसे diaphragm breathing में helpful है. The same thing we will discuss and we will analyze with the help of one activity. What we need for this activity? One first requirement, that is a bell jar with a cork, then straw, rubber sheet, thread for tying this rubber sheet, and a balloon. Now what is the method for this? The first step, with the help of thread tie the rubber sheet to the bottom of the bell jar. This represents the diaphragm. ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि जो जार है उसकी बॉटम पे हमें रबर शीट लगानी है और उसको टाई करना है रबर बैंड के साथ. वाई वी यूज्ड रबर शीट? बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट रबर्स आर फ्लेक्सिबल इनफ एंड डायफ्राम इज ऑल्सो अ मसल, सो दैट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल, मतलब इट इज़ एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. तो सेम वे ये रबर शीट भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होनी चाहिए, तभी वो डायफ्राम की तरीके से वर्क कर सकती है. देन आफ्टर दैट, after the arrangement has set up, what we supposed to do? You need to take straws and the balloon. और जैसे आपको डायग्राम में दिखाया है वैसे उसका सेटअप रेडी करो. सो दैट बलून डिपिक्स द लंग, मतलब बलून जो हमने लगाए हैं इधर, वो बलून एक्ट करे लंग्स की तरह. ठीक है, जैसे हमने ब्रीदिंग के टाइम पे डिस्कस किया था कि जब भी आप एयर इनहेल करते हो तब थोरेसिक कैविटी इंक्रीज़ होती है, फिर जैसे आप एक्सेल करते हो तब थोरेसिक कैविटी डिक्रीज़ हो जाती है. तो सेम वे यहाँ पे भी होना चाहिए. तो हमने वो रिप्रेजेंट करने के लिए बलून्स का यूज़ किया है. सो हियर बलून्स आर एक्टिंग एज अ लंग्स. देन पुल द रबर शीट डाउन, रबर शीट को नीचे की तरफ खींचो. व्हाट हैपन्स टू द बलून? बलून में क्या आपको चेंजेस दिखता है, ऑब्जर्व करो. आफ्टर दैट पुश द रबर शीट इनसाइड, मतलब कि रबर शीट को छोड़ दो. तो क्या होगा? तो रबर शीट विल पुल्ड इटसेल्फ टूवर्ड्स दी इट्स ओरिजिनल पोजीशन और रेस्टिंग पोजीशन. फिर क्या होता है वो भी आपको भी ऑब्जर्व करना है. तो यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया गया है. देन दैट इज़ व्हाट द ऑब्जर्वेशन. तो फर्स्ट डायग्राम में क्या है कि जब भी हमने रबर शीट को नीचे की तरफ पुल किया, एट द टाइम द बलून गेट्स फिल्ड विद द एयर बिकॉज द कैविटी इंक्रीजेज एंड एयर रशेस इन द बलून. दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्स ड्यूरिंग द इनहेलेशन. इनहेलेशन में भी ऐसे ही होता था कि जब भी डायफ्राम नीचे की तरफ मूव होता था तो क्या होता था, कैविटी बढ़ जाती थी, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होती थी और बाहर की एयर अंदर की तरफ रश करती थी. तो सेम थिंग्स यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर. हियर द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एयर पुशेस इनटू द लंग्स इन केस ऑफ ब्रीदिंग. द सेम थिंग यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर इन द वेरी फर्स्ट डायग्राम. देन इन द सेकंड डायग्राम व्हाट हैपन्स कि वहाँ पे हमने रबर शीट को छोड़ दिया है. ठीक है, तो व्हेन द रबर शीट इट इज़ पुश्ड अप, छोड़ दिया तो मतलब वो क्या होगा, तो इट विल पुश्ड अपवर्ड साइड. देन द बलून कोलैप्सेस अगेन. कोलैप्स होना मतलब सिकुड़ जाना. इट कोलैप्सेस अगेन. दिस इज सिमिलर टू द एक्सेलेशन. व्हेन द डायफ्राम रिलैक्सेस द एयर रशेस आउट ऑफ द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू आवर नोज. ठीक है, अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी. ये आप घर पे भी कर सकते हो अगर ऐसी कोई असेंबली आपके पास है तो. Then it would be very clear to you that how actually diaphragm works for the breathing process. Understood all? This is what the role of diaphragm in the breathing process. Now next point to be discussed is exchange of gases. Already we discussed this point when we discussed the organs of respiratory system. Even when we discussed passage of air, at that time also the exchange of gases I discussed.
with terms to alveoli. ठीक है, अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम एज इट इज़ सेपरेटली गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो जब भी हम एयर इनहेल करते हैं तो वो कौन सा रूट फॉलो करती है? ऑक्सीजन रिच एयर की बात कर रही हूँ मैं. व्हेन वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन रिच एयर, then which route it will follow? Remember the passage of air. They first of all nose, then pharynx, then larynx, then trachea, then bronchus, then bronchioles, and finally it will reach to the alveoli. So that route is what? Passage of air. Like this way it is reaching to the alveolus, टू दी सिंगल अल्वियोलस. तो जो फर्स्ट डायग्राम आपको दी है यहाँ पे, उसमें जिसमें आपको लंग दिखाया है, तो उसमें आपको पैसेज बोला गया है कि लाइक दिस वे एयर इज़ रीचिंग टू दी अल्वियोलाई. तो मैं एक बार फिर से रीड कर रही हूँ वो, तो ध्यान से सुनना. द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द ट्रेकिया आफ्टर पासिंग थ्रू द नोज एंड लैरिंग्स. इट कैरीज द एयर टू द ब्रोंकस. द एयर देन मूव्स इनटू द ब्रोंकियोल्स एंड देन इनटू द अल्वियोलाई. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. नाउ इन द अनदर डायग्राम, सेकंड डायग्राम, उसमें क्या दिया है? तो उसमें आपको अल्वियोलाई दिखाया गया है. ठीक है, कैसे अल्वियोली के सेल्स है, हाउ द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर रैप्ड अराउंड द अल्वियोलस एंड लाइक दिस वे द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस. हाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ पल्मोनरी वेन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हमने लंग्स में डिस्कस किया था इसके बारे में. तो फिर से हम बोल रहे हैं दैट पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द अल्वियोलाई. द पल्मोनरी वेन रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट. अंडरस्टूड. जो हमने लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन के बारे में डिस्कस किया था, द सेम थिंग इज डिस्कस्ड ओवर हियर. नाउ इन थर्ड डायग्राम अ डीप एक्सप्लेनेशन इज गिवन. मतलब कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाया है कि अगर एक अल्वियोलस का सेल देखें, एक सेल, उसके बीच में एयर सैक्स है. ठीक है, वो एयर सैक मतलब कि सेल के बीच वाली कैविटी जगह. तो वहाँ पे जब भी एयर आती है और उसके अराउंड अल्वियोली ब्लड कैपिलरी है और ब्लड कैपिलरी में ब्लड इज़ मूविंग. सो उसमें कैसे प्रोसीजर ये होती है वो आपको दिखाया गया है लास्ट डायग्राम में, थर्ड डायग्राम में. तो उसमें देखो फर्स्ट जो रेड कलर का दिया है दैट इज़ व्हाट द थिन मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरी. फिर उसमें रेड कलर के जो डिस्क शेप्ड सेल्स दिए हैं दैट इज़ आरबीसी. तो यहाँ पे एक साइड आपको जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा है वहाँ पे रेड कलर के आरबीसी दिखाए हैं, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा है वहाँ पे आपको ब्लू कलर के आरबीसी लिखा है. इट मीन्स कि जो ब्लू कलर लिखाया है दैट इंडिकेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर. ठीक है, एयर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड. और जहाँ पे आपको रेड कलर के दिखाए हैं दैट ब्लड हैविंग ऑक्सीजन. अंडरस्टूड दिस मच. अभी देखो कि जब भी आपने ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल की है और यहाँ बीच में अल्वियोली के सैक में वो ऑक्सीजन रिच एयर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट हाई है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन. ब्लड में ब्लू कलर है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हाई है और ऑक्सीजन बहुत ही कम है, तो ऑक्सीजन के लिए वो लो कॉन्सेंट्रेशन हुआ. तो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन विल मूव टू द लो कॉन्सेंट्रेशन इनटू द ब्लड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. रिमेंबर हमने इसके आगे ही हमने डिफ्यूज़न के बारे में डिस्कस किया था. सो विद द हेल्प ऑफ सेम डिफ्यूज़न प्रोसेस ऑक्सीजन विल मूव इनटू द ब्लड वाइल कार्बन डाइऑक्साइड, अभी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और एयर जो अल्वियोलाई सैक है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है. तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ब्लड हाई कॉन्सेंट्रेशन है और अल्वियोली सैक लो कॉन्सेंट्रेशन है. तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ फ्रॉम ब्लड टू द लो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ अल्वियोली सैक. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मूव होगा. यहाँ पे देखो आपको एरो करके भी दिखाया है. तो ऐसे डिफ्यूज़न थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से अल्वियोलाई सैक में आ जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट एक्सेलेशन प्रोसेस विल बी डन. मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई सैक में है ऐसे सारे के सारे अल्वियोलाई में ऐसे ही होगा.
फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम एक्सेल कर देंगे एटमॉस्फेयर में. सो दिस इज व्हाट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी डन इनटू द अल्वियोलाई. तो यहाँ पे क्या दिया है, मैं रीड कर रही हूँ, अच्छे से सुनना. दैट ओनली अ वेरी थिन मेम्ब्रेन separates the air in the alveoli from the blood in the capillaries. Oxygen diffuses into blood and carbon dioxide diffuses out of the blood. Understood? This is what the exchange of gases. I hope this is clear. ठीक है. अभी जब ऑक्सीजन जो हमने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, हमने जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया है वो अल्वियोली में होगा, फिर वो ब्लड में जाएगा डिफ्यूज़ होके, फिर ब्लड में आरबीसी, जो कि मैंने अभी आपको बोला, आरबीसी के पास कौन सा एक पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन. आरबीसी के पास एक पिगमेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन. वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके बनाएगा कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब के आरबीसी हैविंग ऑक्सीजन. Then this blood carry this oxyhemoglobin to all the cells of the body. फिर वो सेल तक पहुँचेगा, सेल के अंदर जाएगा. देन सेल के अंदर अभी एब्जॉर्ब्ड फूड तो है ही इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. सो इन द सेल दिस oxyhemoglobin रिलीजेज द ऑक्सीजन. ठीक है. जब सेल के पास पहुँचेगा फिर ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या करेगा, तो कि अपने उसने जो ऑक्सीजन को अपने में कंबाइन किया था उसको रिलीज़ कर देगा. फिर वो ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा. फिर अंदर जाके सेल के अंदर जाके ऑक्सीजन क्या करेगा, सो दिस ऑक्सीजन हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड. फूड मतलब ग्लूकोज और वी कैन से शुगर टू जनरेट द एनर्जी एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन वी डिस्कस द रेस्पिरेशन प्रोसेस. देन अलोंग विथ एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, वाटर भी रिलीज होती है एंड हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड. हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड और वी कैन से जनरेटेड. सो कौन सी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होगी इन द ब्रेकडाउन ऑफ, सो वेन एवर ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इज डन एट दैट टाइम एनर्जी इज लिबरेटेड, हीट इज इवॉल्व्ड. अलोंग विथ हीट एंड एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड water will be released. So that we can understand through this equation which you can see that sugar plus oxygen, sugar की जगह पे अगर आप ग्लूकोज भी लिखोगे then also it will be correct. Sugar plus oxygen gives energy, carbon dioxide, water plus heat. Understood? ऐसे होता है. Remember me very properly कि जब भी ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा तब वो आरबीसी के साथ कंबाइन होता है. अभी आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन करके एक पिगमेंट मिलता है जिसकी वजह से हमारे आरबीसी रेड कलर के बन जाते हैं. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी ब्लड इज ऑल्सो रेड इन कलर. फिर वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा. ठीक है. और फिर वो सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा. ये कुरियर बॉय है हीमोग्लोबिन. ठीक है. ये ऑक्सीजन को ड्रॉप करता है सेल में और फिर वहाँ सेल में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके अल्वियोली तक लेके जाता है. ठीक है. तो इट इज़ कुरियर सर्विस. ये हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज़ अ कुरियर बॉय एंड आरबीसी कुरियर सर्विस है. ठीक है. तो ऐसे समझना, लिखना मत. अगर एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है. आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है. इसमें आपको पहली डायग्राम में रूट दिया है, सेकंड डायग्राम में पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी के बारे में एक्सप्लेन किया है और थर्ड डायग्राम में हाउ डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन अल्वियोली सैक एंड ब्लड, दैट इज एक्सप्लेन्ड. उसके बाद ऑक्सीजन ब्लड में आ गया. फिर क्या होता है ऑक्सीजन का कि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और फिर सेल तक पहुंचता है. जब भी सेल तक पहुंच गया फिर बाद में वो हीमोग्लोबिन से रिलीज़ होके ऑक्सीजन सीधा सेल के अंदर जाएगा और फिर जो ग्लूकोज और शुगर है उसका ब्रेकडाउन करेगा एंड उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा एंड along with that carbon dioxide and water is also produced. So this is what the respiration process. Production of energy is what respiration process. I hope this thing is clear now. Now we will see another activity to
show that exhaled air has more carbon dioxide. Theoretically तो हम बात करते हैं कि whatever air we are exhaling out, it is having more carbon dioxide. But now we will prove the same through an activity. What is the aim of this activity? To show that exhaled air has more carbon dioxide. Materials needed for this: 2 disposable glasses with covers and a hole on top. मतलब टॉप पे होल होना चाहिए, ऐसे कवर हमें चाहिए. देन 2 स्ट्रोज वी नीड एंड लाइम वाटर. लाइम वाटर मीन्स वॉट? वो चूना होता है ना, उसको पानी में घोल के जो भी सॉल्यूशन बनता है उसको लाइम वाटर बोला जाता है. देन व्हाट इज़ अ मेथड फॉर दिस? यू हैव टू फिल बोथ द ग्लासेस विथ लाइम वाटर. दोनों में स्ट्रो रख दो. फिर फर्स्ट वाले ग्लास में जैसे कि आपको दिख रहा है डायग्राम में कि लेट एयर एंटर वन ऑफ देम थ्रू स्ट्रो. मतलब स्ट्रो को ऐसे रखना है, उस अपने आप वो एयर थोड़ी बहुत अंदर जाएगी, आपको एयर ब्लो नहीं करनी है. इन सेकंड ग्लास you have to blow out some air, that is exhaled air. Now what would be the observation? The lime water in the first glass is only slightly milky, while in another glass it would be very milky. ठीक है, वो बहुत ही मिल्की बन जाएगा. मिल्की मतलब एकदम से मिल्की वाइट कलर का बन जाएगा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट द ऑब्जर्वेशन. नाउ लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट टर्न्स इनटू मिल्की वाइट. तो अगर आपका लाइम वाटर मिल्की वाइट बनता है, ठीक है, तो फिर वो एक्सेल्ड एयर में और वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में है. तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट ग्लास में बहुत ही कम मिल्की वाइट सॉल्यूशन बना, क्योंकि एयर में लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, while in another glass you have blown out the exhaled air. ठीक है, आपने उसमें exhaled air blow की है. इट मीन्स के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ज़्यादा मिल्की वाइट सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ. तो इट प्रूव्स दैट exhaled air contains more carbon dioxide. तो what would be the conclusion? That carbon dioxide has a property of turning lime water milky. From that observation it is true that the exhaled air has more carbon dioxide. अगर आप ये घर पे ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो. इट इज़ वेरी इजी एक्टिविटी टू बी डन एंड टू कन्फर्म दैट एक्सेल्ड एयर इज हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन इट. Now the next topic, that is respiration in animals and plants, will be in part 2. So please watch another part also. Thank you so much.